After a leap of 34 years, National Education Policy 2020 has got formal note from Union Cabinet and is aimed at transforming school and higher education system for making India a global knowledge superpower. We are fortunate to have Mr. T.P. Kaushik, the principal of KIT Senior Secondary School, today with us, and he is one of the perfect person to interact on the topic, as he has been associated with the procedure of sending valuable suggestions to the drafting policy committee headed by Mr. Krishnaswamy Kasturirangan. Welcome, sir. It's okay. We would like to start with knowing the inside story of NEP, sir, because people are mostly exposed to the popular phenomena, but they did not know what exactly are the inside points of NEP 2020. After a long gap, the reform in education has come up, no doubt. Certainly, it will boost our education system, because when before 34 years, another reforms came in the education policy. Certainly, they were correct for that very time. And now it is the need of the time that we were in dire need of the reforms for the reforms in the education system. So government has done it. It's a great step. Government certainly this is an admirable step. Very true, sir. So as a head of the institution, what are your expectations from NEP 2020? As per my own expectation, everything is okay. Basically, lacuna was there in our primary education system. This NEP 2020 has given some boost in the primary education, and they have given emphasis on this primary education also by introducing, that is, the regional language in primary education. A very nice one. And the system, they have changed it. They have just even then biologically also, if we see, for example, I would like to give clear-cut information. If you see the biologically आप किसी बच्चे को तो देखेंगे, वो उसका जो माइंड सेट, IQ सिस्टम जो छोटे लेवल पर जितना होना चाहिए था, वही सिस्टम इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी में डाला है. आजकल का जो बच्चा LKG सिस्टम, UKG सिस्टम या प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम पर जो एम्फेसिस हम कर रहे हैं, जो कैरिकुलम हम ऐड कर रहे हैं, जो उसको पर थोप रहे हैं, उससे बच्चे का जो दिमाग है, माइंड है, वो उसका विकास नहीं होता है. नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर उन्होंने रीजनल लैंग्वेज के ऊपर इसमें जो प्री प्राइमरी एजुकेशन पे एम्फेसिस किया है, जो कि 5 साल तक चलेगा, उसके बाद में 3 साल, उसके बाद में फिर एक 3 साल का, फिर इस बाद में 4 साल का गैप. मीन्स 5 + 3 + 3 + 4 वाला जो सिस्टम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, सर्टेनली इट इज़ रिमार्केबल. और ये बच्चे को मानसिक रूप से नॉलेज बेस एजुकेशन देने के अंदर एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा. And as Prime Minister Narendra Modi has also mentioned, it is critical thinking based system instead of curriculum based. And every education reform is ultimately targeted to reform the students. So what treasure, according to you, does it hold for students especially? For students, I again reiterate it that number one, that is streamless. They have just removed the streams. Student can opt anything. For example, a student of physics, chemistry, mathematics, student of non-medical, student of science, he can study economics also. He can study geography also. He can study anthropology also. He can study anything. This is very big blow in this particular education system. I think so. Certainly, it will again give big emphasis on the knowledge-based education. So this is the basically emphasis, and this was the suggestion which we gave. Education system should be knowledge-based, not as just we crime it, not rectification like this. It should be on the knowledge-based system. So this is a knowledge-based education system, and it is one of the remarkable education system which we are going to have in coming future. Another thing, they have given also the teaching skill also. They have also given emphasis on the teacher education also.
that is they have made the B.Ed as a professional education, 4-year education system, that is B.Ed. After passing 12th standard, student can enroll himself for the B.Ed. For example, he will do the BSc B.Ed, he will do the BA B.Ed for 4 years integrated course. So it will give the teaching skill, it will improve the teaching skill of the teacher. If we get the skill, if we will get the skilled teacher, certainly skilled teacher will give more quality education to the students. So teaching, it has given emphasis on the teacher education also. So this is one of the best. Yes. So now we would like to know, how can teachers act as catalyst for reforming education system by using this weapon of NEP 2020? For the education system, teacher acts as an engine. If engine is good, certainly it will pull the train fast and a smooth way. So this education, again, as I told earlier, this education has given emphasis on the teaching skill or the teacher skill. So in this, by not only new teacher will come, the existing teacher will also go for the orientation also. They will improve their teaching skill and they will improve their academic profile also, and they will upgrade their academic profile also, and in this way this good teacher will come up and they will impart good education. So this is the workout. को लगता है क्या हम NEP को एज ए मीडियम यूज करके जो हमारा लॉन्ग टर्म एम है भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का, उसको अचीव किया जा सकता है? सर्टेनली ये लेके आई गई है, इसलिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ही लेकर आई गई। भारत पहले विश्व गुरु था, तो उसमें एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट्स थे, बेसिक फॉल्ट्स थे, उनको मेकअप करने के लिए, नॉलेज बेस्ड एजुकेशन को डेवलप करने के लिए भारत को विश्व गुरु बनने में ये एक मील का पत्थर साबित होगी, ये फिक्स है। सर, बहुत बार हम स्टूडेंट से सुनते हैं कि उनको आंसर आता था बट लैंग्वेज एक बैरियर बन गया। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज का जो कंसेप्ट एलिमेंट अर्ली एज पे इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, वो कैसे इंस्ट्रूमेंटल साबित हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने? लैंग्वेज बेसिकली हमेशा हमारे बेसिक पर्टिकुलरली उत्तर भारत के लिए लैंग्वेज एक प्रॉब्लम रही है, और रीजनल लैंग्वेज के अंदर आंसर न देने की वजह से बहुत सारे बच्चे रह जाते थे और रह भी रहे हैं। उनके दिमाग में आंसर होता था पर वो आंसर को फ्रेम नहीं कर पाते थे, आंसर को लिख नहीं पाते थे। जो एक रीजनल लैंग्वेज को उन्होंने ऑप्ट करने का फार्मूला बनाया है, उन्होंने ऑप्ट करने के लिए एक सिद्धांत को स्वीकार किया है इस एजुकेशन में, ये मैं इस बात से सहमत हूँ कि निश्चित तौर पर बच्चे अपने भाव को अपने को व्यक्त कर स्वतंत्र रूप से कर सकें। सर, एक और इशू जो आज का यूथ फेस करता है, तो इसके पास डिग्रीज हैं लेकिन जॉब्स नहीं। तो NEP में एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया वोकेशनल एजुकेशन का, वो किस एक्सटेंट तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इस NEP की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन। जो वोकेशनल SUPW के तहत एक ऑलरेडी एक स्किल एजुकेशन चल रही थी, पर उसमें बहुत सी खामियां थी। वो एक खाना पूर्ति के रूप में चल रहा था। इन्होंने उसको एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में एक मैंडेटरी भी किया है कि हर बच्चे को एक कोई ना कोई अपनी स्किल सीखनी होगी, क्योंकि विदेशों में ऐसा चल रहा है ऑलरेडी। विदेशों में आज की डेट में हमारे बच्चे जो सिविल इंजीनियर हैं और वो जो छोटा सा भी एक ईंट अच्छी तरीके से सीधे तरीके से रखना नहीं जानते हैं। वो टेक्निकली बहुत साउंड होंगे पर वो प्रैक्टिकली इतने कमज़ोर होते हैं। तो उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एक एम्फेसिस किया है कि हर बच्चा कुछ ना कुछ स्किल को सीखेगा और वो आगे आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में एक एंटरप्रेन्योर बनेगा, और इससे बेरोज़गारी लगभग ख़त्म हो जाएगी भारत से। तो ये जो NEP की ये खूबसूरत जो उन्होंने पॉइंट रखा है वोकेशनल एजुकेशन के लिए, ये निश्चित तौर के ऊपर हमारी बेरोज़गारी जो भारतवर्ष में एक बीमारी के रूप में फैल चुकी है, इसको ख़त्म कर देगा। बिल्कुल सर, और हर पॉलिसी, हर रिफॉर्म, हर चेंज पेपर्स तक ही लिमिटेड रह जाता है अगर उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो क्या सजेशंस आप इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए देना चाहेंगे? इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसे एक NEP में इसको यूनिवर्सलाइज्ड किया गया कि इसको बहुत सी चीज़ें सेल्फ स्टार्ट होती हैं, कई फोर्सली स्टार्ट वर्कआउट करनी चाहिए। कि जो वोकेशनल एजुकेशन जैसी खूबसूरती इसके अंदर है
इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इसकी जो मार्क्स सिस्टम है इसको कैजुअली बना के ना रखा जाए, इसको एक मेन प्राइम सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसके अंदर NEP में प्रावधान किया गया है और जस्ट अब सारा कुछ निर्भर है कि इस NEP को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि सारा दारमदार सारी चीज़ की व्यवस्था की जो योजनाओं की ऊपर जो निर्भर होता है कैसे वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट होती हैं। यदि इसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया है तो भारत बहुत ही जल्दी, बहुत ही छोटे समय पीरियड में विश्व गुरु बन जाएगा। बस इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दिया जाए। यस सर, आपने बहुत डिटेल स्टडी की है इस टॉपिक की, तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं इस NEP के, या सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको कौन से लगे और किस तरीके से वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का काम कर सकते हैं? नंबर 1 नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, नंबर 2 स्किल एजुकेशन सिस्टम पे, और जो तीसरा जो रीजनल लैंग्वेजेस को इन्होंने प्राथमिकता देने के लिए कोशिश किया है उसके लिए, और सबसे बड़ा बूस्ट दिया कि जो बोर्ड एक फाइनल बोर्ड एक ही बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, बीच बीच में बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होंगे। ये मेजर पॉइंट्स है। सर अंत में मैं चाहूँगी कि आप NEP को एक लाइन में अगर हमारे व्यूअर्स के लिए प्रेजेंट कर सकें। NEP एक कुल मिलाकर बच्चों के लिए नॉलेज बेस्ड एजुकेशन का एक की है, जिसके तहत बच्चा अपनी खुद का उद्यम अब लगा सकता है और बच्चा आगे बढ़ सकता है, बच्चे को एजुकेशन को खुद लर्न कर सकता है। इवन देन NEP के माध्यम से बच्चों को लर्निंग, सेल्फ लर्निंग के ऊपर भी प्रमोट कर सकता है। ये मेन। बहुत बहुत शुक्रिया NEP को इतना हर एस्पेक्ट को टच करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। To explore more secrets of NEP 2020, do subscribe and like our channel. And don't forget to connect to us for next interaction of Decoding NEP 2020 series. For now, that's all from my side. Thanks for watching and take care.